Last year, every year, state first rank. 625 out of 625, the one who secures. Joins my institute. See, the toppers of the state joins us for one reason. Came. Furqan, I think you don't have a picture of Furqan. JEE result pictures are there here, I don't know. 99.4 percentile. His 10th result was, he was 621 marks. That boy secured 621 in 10. Joined me. I think you all have seen the video. I was not the first rank holder in my institution. One girl was there. That girl joined an institution where the institution was very famous, very good institution. She got very good percentage in 12. Furqan did not get very good percentage in 12. That girl got very good percentage in 12. When the 12th result came, the parents of that girl came to her father house and told that what he did, he did a big mistake. Now, when the JEE result came, the same parents came to this boy's house, started crying. We did not know that this is a different kind of preparation. My daughter did not qualify in JEE. She did not get requisite percentile, requisite marks. Same case for the 4, 5. Now, if you secure 100 in physics, 100 in chemistry, 100 in mathematics, 100 in biology, it has zero value. I always say the first step to success is that you have to engineer. Confident hands. I want to see that confidence. Please stand up. Yes. Again, give it a round of applause for them. I wanted to tell you, engineers in this country every year. What is the job requirement, you know? Absorbed by the industry. 1,30,000 to 1,40,000. How it is possible? Out of 8 lakhs in 1 lakh. Exams with flying colors. You look so fabulous with a lot of excitement. Today, our father is not feeling well. He is in ICU. Even though he is in ICU, now candidate is here. That is our appreciation. We are really proud of this candidate. We have to stand up and we have to appreciate this candidate. Please. ये बच्चे हमारी इसीलिए इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। बाप को आईसीयू में छोड़ के बच्चे यहाँ पे आके दे रहे हैं। ये भी हमारे लिए प्राउड का मामला है। लो बेटा, दो बात करो। Firstly, I would like to congratulate all the 10th and 12th group sports students. I would like to thank all the teachers for. I would like to give my gratitude to all my teachers for their support. They always motivated me to give my best. I would like to thank Shami Cycle View College for giving me knowledge and eternal support. Monica R, who has secured 85% from DTL school. Appreciation is what will make your children cheerful. So I request you to appreciate each and every student. Sayyada Afreen, RGA school. From St. Joseph School.
We have to warm appreciate to these students. कहीं से warm ये बच्ची बहुत स्पेशल है। आज परसेंटेज 92 बच्ची के बारे में अयूब साहब मुझे ऊपर बोले हैं। मैं बच्ची के बारे में सोच रहा था कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन देख के मुझे लग रहा है कि ये बच्ची इंशाल्लाह डॉक्टर बनेगी और मेरी तरफ से 100% फ्री सीट बच्ची के लिए 100% फ्री सीट। अल्हम्दुलिल्लाह। Gokul Ratan 92%, Ahmad Khan 90% from St. Philomena. Original School. I request parents to come along with their from St. Paul. Next, Alfiya Nihal. Asima Aisha Asima Ansari 93% from St. Joseph. Next, Simran Kanur from Citizen. Next, Noor Zaiba from Regional. Asim from Al-Kareem. %, from St. Joseph School. Next, Ramya 93% from DVS. Thank you. Thank जी मैम। Asadullah Khan. अस्सलाम वालेकुम मैम। with a need. I'm looking forward to see you as doctor, inshallah. Next, Mariam Firdaus. Next, Faria Mehmet. Next, Tilak Syami from St. शुक्रिया। Each and every student. Next, Mohammad Rihan Sharif. Next, Shiva Basran 93.92% from Asrar Girls School. जी शुक्रिया। Nayab 93.
ओके एक मिनट आपा Let everybody. Next, Daniel Namar Mahmood, who has secured physics and physics government, chemistry and history government. Subject, the parents. माशाल्लाह जी सर जी दिस इज इन ऑनर ऑफ आवर चीफ गेस्ट अयूब खान साहब। अयूब साहब के लिए जो एक्स मेयर हैं मैसूर के, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हैं कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त इन्होंने दिया। मुझे इतनी खुशी हुई, ये कोई फ्लाइंग गेस्ट नहीं थे, शुरू से आए और प्रोग्राम शुरू होने से पहले और आखिरी तक बैठे। ये बताता है इनकी फिक्र को लेके, जो तालीम को लेके है। अल्लाह इनको और तरक्की दे, हर हाल में अल्लाह इनको अच्छा रखे, ताकि मैसूर वालों के लिए आप कुछ करने के मौका बने। Assalamu alaikum. I am Sufia. Alhamdulillah, I am feeling proud that I am a student of Shaheen Falcon PU College. I scored 92.5% in my second PU Karnataka board. I would like to say my thanks to my principal, lecturers, staff and management for their support and cooperation. Shaheen Falcon PU College provides true education that draws out and stimulates physical, mental and spiritual abilities of students. It also provides a supportive environment for learning and growth and development of the student. I would like to say my thanks once again. Jazakallahu khairan. जी जनाब, मैसूर शहर की मशहूर और मारूफ शाहीन फाल्कन पीयू कॉलेज जो हर वक्त स्टूडेंट्स यानी तलबा व तालिबात को जो है हिम्मत अफजाई और उनकी हौसला अफजाई के लिए आगे रहती है, चाहे वो SSLC के एग्जाम हो या PU के एग्जाम हो। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको लेकर जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है बच्चों को इज्जत अफजाई की जाती है, जिसमें जो है सारे फिरके सारे तबके के भी बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं। तो आप खुद यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाल ही में SSLC बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चे मेरिट में पास हुए हैं। तकरीबन 90% या अबव 90% लेकर पास हुए हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए, इज़्ज़त अफजाई के लिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के MD जनाब सुभान साहब ने एक आलीशान तरीके से एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर अब्दुल कलाम के नाम से अवार्ड्स भी दिया गया है, जिसमें मैं यहां पर शामिल हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि इन बच्चों के बीच में आज इस प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। इनकी खुशी में मैं अपनी खुशी शेयर कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ सुभान साहब का, जो MD हैं शाहीन इंस्टीट्यूट्स के, जिसने इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, इज़्ज़त अफजाई के लिए बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन को भी यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की और उनको एक हिम्मत दी कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए। हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत सारे बच्चे SSLC में अच्छे मार्क्स लेते हैं और जाते आते PUC तक फिर पीछे चल जाते हैं। इसकी वजह बहुत सारी होती है, उसमें से एक वजह वालिदैन भी रहते हैं।
जो वालिदैन जो तवज्जो देना चाहिए अपने बच्चों को पीयूसी तक, वो तवज्जो एसएलसी में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एसएलसी में हम अच्छे मार्क्स दिला दिए तो बच्चा आगे पढ़कर निकल जाएगा। ये गलत बात है। तो इसका एहसास दिलाने के लिए, इसको समझाने के लिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के एमडी ने यहाँ पर मुझे जनाब प्रोफेसर नबी साहब को यहाँ पर बुलाकर इनके सामने बातचीत की। इनके सामने किस तरीके से बच्चे आगे पढ़ना है इसको इन्होंने एमडी साहब ने समझाया। और इस वक्त अहम बात यह हुई कि सिर्फ एसएलसी में अच्छे स्कोर कर देना बड़ी बात नहीं है, पीयूसी पढ़ना है। पीयूसी के साथ साथ, पीयूसी बोर्ड के स्कोरिंग के साथ साथ नीट जैसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा आगे बढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनना हो तो ये बच्चों के दिमाग में आज डालना था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबी के साथ जनाब सुभान साहब ने इस बात को समझाया। मैं समझता हूँ कि आज जो बच्चे हैं यहाँ पर आए हुए थे, ये एक कौम व मिलत की अमानत है, ये कौम व मिलत की शान और फ़ख्र है, जिसे आगे बढ़कर कौम इनके ऊपर निगाह लगाए हुए बैठी है। इनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। ये हम उम्मीद रखते हुए इस बच्चों को आज हिम्मत अफजाई की है। माशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये बच्चे कौम के लिए एक बहुत बढ़िया ज़रिया बनकर बाहर निकलेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को भी, इनके वालिदैन को भी, और इनके जो असातिज़ा, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं, इन सब मुबारक के हकदार हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों का जिसने इन बच्चों को इतने अच्छे मार्क्स लेने तक यहाँ पर लाकर पहुँचाया। मैं फिर एक बार इनके वालिदैन से अपील करता हूँ कि बच्चों को यहाँ पर ही मत छोड़िए, इन बच्चों को आगे ले चलिए। बेशक मैं बहुत सारों बच्चों के वालिदैन से मिला और बच्चों से गुफ्तगू किया। इनमें से बहुत सारे बच्चों के वालिदैन ड्राइवर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, लेबरर्स है। मैं खुशी की बात है आज इस वक्त ये सुनते ही सुभान साहब ने, जो शाहीन इंस्टीट्यूट के एमडी हैं, बहुत सारे बच्चों को फ्री सीट देने का वादा किया है। ये स्टेप है। मैं आवाम से और हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वालों से भी यही गुजारिश करता हूं कि इस तरीके से आप आगे बढ़िए, इन बच्चों को आगे लेकर चलिए। तो वालिदैन से यही गुजारिश करता हूं कि आप एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाना मत छोड़िए। इन बच्चों को पढ़ाइए, आगे ले जाइए। ये जो है ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, आज से ये कौम की अमानत है आपके पास। ये कहते हुए मैं यही शुक्रगुजार हूँ इन शाहीन इंस्टीट्यूट वालों का, जिसने आज ये मौका अता फरमाया कि इतनी अच्छी महफिल जमे, इतने अच्छे बच्चे यहाँ पर आए, इकट्ठा कर बातचीत हुई। फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जगह पर। जी जनाब प्रोफेसर नबी जान साहब, अगर मैसूर शहर की बात करें तो ऐसे कॉलेजेस हमारे यहाँ बहुत हैं, मगर जब भी कोई अच्छा कदम उठाने की बात आती है तो वो शाहीन कॉलेज आते हैं, क्योंकि पहले ही वक्त में जो है ये सारे काम अंजाम दे देते हैं। तो इसके लिए आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं आज शाहीन कॉलेज में आज पहली बार नहीं, जिस दिन से शाहीन कॉलेज मैसूर के अंदर वजूद में आए उस दिन से मैं यहाँ हमारे एमडी सुभान साहब से मिलता जुलता एसोसिएट हूँ। आज खुसूसन इसलिए यहाँ मैं आया हूँ, सबसे पहले यहाँ जो बच्चे हैं अचीवर्स, अवार्डेड बच्चे, उनको मुबारकबादी पेश करना है और यहाँ के स्टाफ को, मैनेजमेंट को मुबारकबादी पेश करना है। इस सबसे बढ़कर शाहीन कॉलेज सिर्फ अब तक मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री थी, मगर अब शाहीन कॉलेज आईएएस, आईपीएस की भी फैक्ट्री बन चुकी है। जहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में सारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा सकते थे लगा चुके हैं, और वो जामिया मिलिया को टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप कहते थे। आज वहाँ से 35 बच्चे आईएएस के लिए आए हैं, जिसमें हर कौम मिलत के बच्चे हैं। आज उन बच्चों में शाहीन का भी एक बच्चा शामिल है। ये मुबारकबादी पेश करने के लिए और पूरी मैसूर की अवाम की जानिब से और वालिदैन की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ गो हूँ कि एक नहीं, इसके बाद एवरी ईयर 10-10 बच्चे आईपीएस, आईएएस के होने की मैं उम्मीद करता हूँ। और इन बच्चों को देखकर ये तवक्का और भी मजबूत हुई है।
मैं मुबारकबादी के अल्फाज कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जी जनाब सुभान साहब, आपका ताल्लुक बिदर से है, मगर रियासत कर्नाटक में तालीम को लेकर जो है आप हर जगह इसको आम कर रहे हैं, बच्चों में बेदारी आए तालीम को लेकर, तो खुसूसन मैसूर शहर में जो है जब से आप कॉलेज खोले हैं उससे अब तक क्या फ़र्क महसूस हुआ है? देखिए, मेरे लिए हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि हमारे लोगों में एक डर है, बड़े ख्वाब देखने से डरते हैं लोग। कहते हैं कि बड़ा ख्वाब देखने के लिए खर्च लगता है, ऐसी बात नहीं है। हमने शुरू से प्रूव किया है एक कॉन्सेप्ट को कि अगर बच्चों के अंदर अगर हिम्मतें हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को बड़ा ख्वाब दें और बच्चों के साथ ठहरें। इंस्टीट्यूशंस हम यहाँ पे शुरू इसलिए हुए हैं ताकि बच्चों के ख्वाबों को पूरा करें। आज हर मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, मैसूर मेडिकल कॉलेज, मंड्या मेडिकल कॉलेज, चामराजनगर, कर्नाटक के हर मेडिकल कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशनल लर्नर्स हैं। कई किसी के पेरेंट्स रिक्शा ड्राइवर्स रहते हैं, किसी के डेली वेज के रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई डॉक्टर्स के बच्चे भी डॉक्टर रहते हैं जो हमारे पास आते हैं। मकसद है कि इसको मूवमेंट बनाना है, एक बेदारी का मूवमेंट है, एक हिम्मत दिलाने का मूवमेंट है, लोगों के अंदर ख्वाब जगाने का मूवमेंट है। और कोशिश ये है कि बच्चों के अंदर वो छोटी सोच ना लाएं कि मैं तब नॉर्मल मार्क्स ले लूँगा, नॉर्मल काम कर लूँगा, नॉर्मल जॉब कर लूँगा। नहीं, उससे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हम 6 स्टूडेंट्स को यूपीएससी में क्लियर कराने में कामयाब हुए, जो कर्नाटक की तारीख बनी। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा इतना ऐसा रिजल्ट आया कर्नाटक की तारीख में। नीट में अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल प्रूव कर रहे हैं। जेई में ये साल कर्नाटक की वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट फाल्कन हैज गिवन। ये शुरुआत है, मुझे उम्मीद है इस कौम के नौजवान बच्चों से कि इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल और बेहतर हो सकता है। जिस तरह अभी जो आला नंबरात हासिल किए थे, जो टॉपर्स थे, उनको जो आपने इनामात तकसीम किए, उसमें जो है वालिदैन भी बाकायदा आए थे, तो वालिदैन के लिए क्या पैगाम रहेगा? देखिए, हम नबीजान साहब बोल रहे थे, अयूब साहब बोल रहे थे कि इसमें इक्वल हकदार हैं पेरेंट्स, बच्चों के नताइज में इक्वल हकदार हैं, क्योंकि उन्हीं के सैक्रिफाइसेस हैं कि बच्चा यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन यहाँ पे छोड़ देना नहीं है बच्चे को, यहाँ पे अभी थोड़ा ढील दे देना, बच्चा मोबाइल पूछा तो मोबाइल दे देंगे, ऐसा कतई नहीं है। अभी और 1-2 साल आपको अपने बच्चों के साथ रहना है, थोड़ा बच्चों का हर कदम पे थोड़ा ताकीद करना है, बचा के रखना है। इंशाल्लाह जब बच्चा 12th कंप्लीट करता है तो वो इंशाल्लाह कैपेबल बनेगा कि वो अपने डिसीजन ले सके। लेकिन तब तक तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। थोड़ा ये जो 10th के बाद का जो डिसीजन है बहुत खास डिसीजन है। इंटीग्रेटेड सिस्टम को आप ढूंढिए, ट्यूशन के एक विशेष सर्कल है उससे बचिए। अलग से कहीं ट्यूशन, अलग से कहीं कोचिंग, अलग से कॉलेज, ऐसा नहीं चलता। जिम्मेदारी के साथ किसी एक जगह पे एक बच्चे को डालना है और बाद में वो जो जिम्मेदार है उसको पूछना है कि मैंने तुझे पैसे दिए थे पर रिजल्ट क्यों नहीं आया। तभी तो इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार बनेंगे, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन हमेशा अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालने पर लगेंगे। कोशिश ये करेंगे मैसूर शहर में हमको वो जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन के साथ लाएं। वो उसी वक्त हो सकता है जब पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदार खड़ाएंगे रिजल्ट्स का। तो आने वाले दिनों में हम कब देख सकते हैं कि शाहीन फाल्कन कॉलेज जो है एक बड़ी कॉलेज हो मैसूर शहर में, जिसका बड़ा कैंपस हो? क्योंकि काम तो अच्छे हो रहे हैं, मगर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें जो है बच्चे खुली हवा ले सकें। ये नबीजान साहब थोड़ी देर पहले यही बात करें मुझे, ये अयूब साहब है यहाँ पे, तो आप देखिए अल्लाह की मर्जी क्या होती है। हमारा काम है, हमारा काम करना है। हम काम करते करते इंशाल्लाह काम अल्लाह बनाएगा। बड़े ख्वाब उस लेवल पे नहीं है कि हम बिल्डिंग बनने के बाद ही काम करेंगे, शुरू करेंगे। हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह वो सब होता रहेगा इंशाल्लाह। जितने भी बच्चे कामयाब हुए, चाहे वो 90 एबो हो या जस्ट पास हुए हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज? अगर कोई कामयाब नहीं हुआ है तो ये न मत समझिए कि तुम नाकाम है। कोशिश ये करेंगे कैसे उससे सीखें कुछ, कि हर स्टेप कामयाबी रहने ना, हर जगह आपको सीखने में मिलता है। अगर गलती हुई तो गलती से सीखें और बेहतर करने की कोशिश करें। वो उन बच्चों के लिए जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो परफॉर्मेंस दिए हैं, कभी भी एक कॉम्प्लिसेंसी का शिकार ना बने कि मैं कर दिया हूं, मैं आई हैव अचीव समथिंग। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया में आपको अपना लोहा मनवाना है तो बहुत आगे जाना है। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनतों के ऊपर इंशाल्लाह फैसले होंगे, ये अल्लाह का वादा है। आप मेहनत करते रहो, अल्लाह से मांगो, दुआ करो, इंशाल्लाह तुम्हारे फैसले होंगे इंशाल्लाह सही। बहुत बहुत शुक्रिया।